Altaf is battling for life after a fatal accident. Doctors say it's just a matter of time when Altaf will lose this battle. A precious life is lost seemingly to a fatal road accident. But neither the road nor the vehicle is at fault. The real monster is the one that made him lose consciousness while driving. He was on drugs. People often use drugs as an outlet for their problems, although drug use creates its own problems over time. For time being, drug abuse kills the pain, but it also kills the joy, the hope, the body, the brain, and finally the soul. The prevalence of substance abuse in Kashmir has increased manifold. As per the latest data available at Community Centre Srinagar, 3,622 patients were seen in year 2017 to 18, 5,113 in year 2018 to 19, and then there was a rapid increase after April 2019. According to the GMC Srinagar database and its associated hospitals, the number of patients with substance use visiting OPT in the year 2016 to 17 was 6,157, and between January 2017 and December 2017 it was 6,550. These astounding statistics ring alarm bells of a dilapidated future where the youth is in jeopardy. According to a survey done by United Nations Drug Control Programme mentioned in J&K State Human Rights Commission report, there are around 70,000 drug addicts in Kashmir, out of which 4,000 are females. According to local daily, Greater Kashmir, the figure is as high as 5 lakhs. एक हमारा पेपर डाटा एनालिसिस यहाँ का हुआ है जो पब्लिश भी हुआ है 1980s का, वो प्रॉब्ली 80 से 93 तक का डाटा था, जहाँ पे 190 पेशेंट्स हॉस्पिटल में आए थे ओवर अ पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स। तो उस रिलेशन में अगर आप ये देखोगे तो ये मैसिव इंक्रीज़ है, क्योंकि हम सेंटिनल सर्विसेज पे है। क्योंकि हम सेंटिनल सर्विसेज पे है तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि हम सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। सो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो बाकी सारा आइसबर्ग है वो छुपा हुआ है हमारी कम्युनिटी में। The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Bill 1985 was passed by both the Houses of Parliament and it was assented by the President on 16 September 1985. The aspect of drug that is unique to Kashmir is public perception. The conflict, politics and other instances have silenced the drug addiction problem in Kashmir. It comes at an incredible low on the agenda of lawmakers, government officials and the Kashmiri public. The stigma attached to it prevents families from seeking treatment. This attitude is quickly worsening the situation and experts believe that it's already critical. Start कोर में अल्कोहल से पता उसने में बसान पानी नशे निदवान कहीं पता उस बो लास्ट इतने कोई एनजेड बेहतर खान के फल पेन किलर बेस बो कोडिन चवान पता उस बो तथ पे कैनबस निवान तो पता उसमें पानी बसान न क्या गो ईस कालस गसान 7 वरी 7 वरी बाद मे नशे खसान टोटल कहीं 7 वरी बाद बह कर मार्फिन इंजेक्शन लास्टस मे मान नतीज बासो पे अमुक मान यूत नशे कर यह खसान वार वार हर ٲखरस पे पता लास्टस मौत नशे नुवान पे अम मूजूब क्या गई दाग चलन यूत मे अक लट दाग यम सा सहलाब आव मे सन गरिक अती त्रे मे सोच न तम सा गरिकन हूँ कहीं मरन तो मरन मे गरिक मगर तमन पता कि यह क्या कर तुर सो डेकोरेशन तथ नाव पे 3 बोर्डस लिखित सू खोलान पे तथ मज वरान पे हेकान आराम सान दर स्टार्टस मे बोटस मे थोमुत तथ मे गो कर्म ट्राई मे मा रटान अम सात अथ कह कूत दूर क्या कर।
Drug addiction can start with experimental use of a recreational drug in social situations, and for some people, the drug use becomes more frequent. Some drugs, such as opioid painkillers, have a higher risk and cause addiction more quickly than others. मैं तो यही चर्च पीता हूँ और कोडीन पीता हूँ बस। पहली बार ही पिया था 10th क्लास में, स्टार्टिंग जब मैं एडमिशन लिया था मैंने परेपुरा में। दोस्तों के साथ लग गए, वो पीते थे ऑलरेडी, वो हो चुके थे इस पे इन्वॉल्व, तो मैं भी लग गया उन्हीं के साथ, फिर किया पीना स्टार्ट। एक हमारा वो ग्रुप है, क्यों आपने नशा किया? बस सर यूं ही मज़े के लिए किया, मैं देखूंगा क्या होता है इससे, और एट द बैक ऑफ द माइंड उसको ये है कि नहीं, इससे मुझे कुछ नहीं होगा और मैं एडिक्ट नहीं बनूंगा, मुझे अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। दूसरा हम ग्रुप देख रहे हैं, उसमें भी आपने एक पेशेंट देखा कि उन लोगों को अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम है, जैसे माँ बाप के साथ नहीं बनती है, या रिलेशनशिप इशू है, गर्लफ्रेंड के साथ कोई उसमें ब्रेक आ गया और जिसकी वजह से, एज की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। या तीसरा एक और फिनोमेना है कि नहीं, मुझे मायूसी बहुत रहती थी, सैड रहता था मैं, नींद नहीं आती थी। दिस इज सेकंड ग्रुप। और देन देयर इज वन मोर ग्रुप जो छोटे बच्चों का ग्रुप है, आउट ऑफ इग्नोरेंस, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, और उनके एक्सप्लेनेशंस है, मैम क्वेश्चन पूछती थी मैं जवाब नहीं दे पाता था, फिर किसी दोस्त ने कहा आप ये करो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी। किसी लड़की पर क्रश आया, उसको बोल नहीं पाता था, किसी ने बोला आप ये करो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप इसको प्रपोज कर पाओगे। और चौथा जो मैं नया देख रहा हूँ वो है, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, रैप सिंगर्स का फ़ैन हूँ, स्पेशली उसमें बोहेमिया का वो नाम देते हैं। फिर अच्छा बोहेमिया का क्यों, बोहेमिया के साथ वही हुआ जो मेरे साथ हो रहा है, और बोहेमिया फिर उसमें चर्च पीता है, नशा करता है, और मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ। देन वन मोर ग्रुप यू विल फाइंड कि आपके ऊपर हमने इंटरनेट पर सर्व किया, गूगल पर सर्व किया, हमने देखा कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे। दिस इज़ अनदर वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड कि बिकॉज कुछ वेबसाइट्स है, काफ़ी इंटरनेट मटेरियल है जो शायद उसको प्रमोट करता है, लेकिन वो सिर्फ देखो, चर्च की जहाँ बात करें, डेफिनेटली चर्च के कुछ मेडिकल इफ़ेक्ट्स है, ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। हमारे जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी पेन जब कहीं नहीं जाती है तो इसी का एक इंजेक्शन बनता है, लेकिन उन वेबसाइट्स पर यह कहीं नहीं लिखा होता है कि एट व्हाट कॉस्ट, इससे आपके सोच पर क्या होगा, इससे आपकी मेमोरी पर क्या होगा, इससे आपके क्रिएटिविटी पर क्या होगा, इससे आपकी इंटेलिजेंस पर क्या होगा, और इससे आपकी मर्दानियत पर क्या होगा। The most common substances of abuse identified include polysubstance abuse was found in 91.9% of the studied patients. अक्रॉस सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, ये नहीं है कि कोई गरीब ही आता है, अमीर के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, गरीब के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। मोस्टली यंग अडोलसेंस एज ग्रुप के और यंग अडल्ट्स। तो हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जो 10 साल के छोटे बच्चे, किसी को कैनबिस लेते देखा, पहले तो स्मोकिंग करता था, तब कैनबिस लेते देखा तो कैनबिस में चला गया। फिर हेरोइन देखा लड़कों को लेते हुए, ब्राउन शुगर हेरोइन। पहले मैंने नहीं किया इसकी तरफ, बट फिर किसी ने कहा तुम कैनबिस लेते हो, अब तुम देख लो हेरोइन का मज़ा देख लो, तुम पूरे दिन इसी के इस नशे में रहोगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना कैनबिस कंज्यूम करने की। तो मैंने हेरोइन ले लिया, 1 2 बार 5 बार 10 बार उनने मुझे फ्री में दे दिया, जब तक मैं एडिक्ट हो गया। फिर तो अपने आप से लाना पड़ा। अभी तक मैं देख रहा था, अगर मैं 10 पेशेंट को एडमिट कर रहा हूँ, 8 पेशेंट चरस पीते थे, 2 ब्राउन शुगर पीते थे। लेकिन आज आपने खुद देखा अपनी आंखों से, 20 पेशेंट एडमिट है, 18 हीरोइन ले रहे, 2 चरस ले रहे। और जिस कौम में ये हीरोइन आ गया, वहाँ आप डेथ्स गिनना शुरू कर दीजिए। बस एक तो ये चरस वरस पीता हूँ, कोडीन भी पीता हूँ और चिट्टा भी करता हूँ। Just after a few days of shooting this film, one of the young addicts was dead. The death was framed as natural, however, it was not.
The drug addiction has also taken toll not only on the health of abusers but also on their jobs and their social life. The disastrous consequences of drug consumption prove in the later stage of life, especially when the individual develops family which is dependent on him economically, emotionally and socially. पैसा वो भी जाता है, सेहत भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैमिली प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगी। तो फिर मैंने शादी भी की, उनको इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। फिर मेरी बच्ची भी पैदा हो गई एक, तो उससे फिर फैमिली में भी रिफ्ट हो गया और फिर उसका भी डाइवोर्स हो गया। मतलब जस्ट बिकॉज इसी वजह से कि क्योंकि आई डिड नॉट यूज टू, मैं उनको पूरी तरह से मतलब जो मुझे मेरे अपने अखराजात थे, आई वाज समझे, वो जो मैं कमाता था वो अपने ही ऊपर इस्तेमाल करता था, जिससे मेरी जो फैमिली है वो साइड लाइन हो गई। तो फिर हमारी फैमिली में फिर रिफ्ट होने लगा। दैट्स वाई फिर उसका यही रीज़न है कि उसका फिर डाइवोर्स हो गया। इसका एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जब ये बच्चा जब आपने देखा हीरोइन 4 ग्राम लेता है एक दिन को, 4 ग्राम का इसको 8,000 रुपये पर डे का खर्चा आता है। 1 महीना 2 महीना इसने चोरी करके उधार करके अपने वैल्यूबल्स को बेच के पूरा किया, लेकिन 2 महीने के बाद क्या करता है, ये 10 ग्राम लेता है, 8 ग्राम खुद पीता है, 2 ग्राम 2 बच्चों को बेच देता है और ये अपने लिए कस्टमर्स ढूंढता है। 2,000 का अगर इसने लिया है 4,000 को बेचने के, सो यही पेडलर बन जाता है। चाहे ये कितना अच्छा बच्चा हो, कितने भी अच्छे घर से हो, कितना पढ़ा लिखा हो, ड्रग एडिक्शन उसको मजबूर करती है कि वो पेडलर बन जाए। An independent study done by Dr. Khawar Khan Achakzai and Dr. Rabbani Tariq titled Prevention of Health Supplement Use and Androgenic Anabolic Steroid Abuse Among Athletes in Kashmir has shown high prevalence of health supplement use among youth, especially athletes in Kashmir. It has also shown a considerable prevalence of steroid abuse. And all of it comes at a cost: high blood pressure, terrible mood swings, high chances of infertility and depression. हमारी सोसाइटी में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो भी लोग फिटनेस क्लब्स या हेल्थ जिम्स जाने की कोशिश में हैं, वहाँ पे वो एक अलग तरीके के कुछ मेडिसिन्स लाइक हेल्थ सप्लीमेंट्स या फिर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल खुद ब खुद स्टार्ट करने हैं। ये देख कर कि उनके जो सीनियर्स हैं, जिनका मसल बिल्ड उनसे ज़्यादा बेहतर है, उन्हीं को फॉलो करके जिन्होंने खुद ब खुद ये मेडिसिन्स लेना स्टार्ट की थी, तो ये जूनियर्स भी, ये मैच्योर्स भी यही मेडिसिन्स अपने आप लेना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से they land up in different problems later on in life. For example, hypertension है, kidney problems है, या मुख्तलिफ तरीके की बीमारियां हैं जो बाद में रोनुमा होती हैं। उन्हें चाहिए कि ये ज़रूरन कि किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर से पूरी सलाह लें, पूरी एडवाइस लें, उसके बाद डिसाइड करें वेदर ये हेल्थ सप्लीमेंट्स उनके लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि नहीं। क्या वो उस फेज़ में हैं बॉडी बिल्डिंग के या फिटनेस एक्सरसाइजेस के कि उन्हें ये हेल्थ सप्लीमेंट्स या डिफरेंट तरीके के मेडिसिन्स यूज़ करने चाहिए या फिर नहीं। Adding to the problem is the fact that drugs are being produced indigenously. The SHRC study has revealed that the role of peddlers and smugglers to enhance users for their economic interests is growing at large scale. As per the study report titled An Empirical Analysis of Drug Addiction in Kashmir conducted by State Human Rights Commission, 91% stated that they had never been arrested for possession of illegal drugs, while 9% admitted that they had been arrested once or more than once for possession of illegal drugs. Drugs may seem to be causing harm at an individual level, but the real problem is along with that individual, a family and the society at large starts to disintegrate. The number of people involved in this unruly nexus keeps on increasing with every single day. Attempts to stop drug use may cause intense cravings and make the addict feel physically ill. The addict feels like he or she cannot live without the drugs. Many a times they resort to unfair means to procure the drugs, which increases crime. An
An addict's ability to think takes a huge toll because to him or her, all that matters is the drug. The drug is foremost, even above love and family. एडिक्ट एज अ ड्रग एडिक्ट भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया बहुत टाइम तक। उनको पता भी था कि कोई ड्रग ले रहा है, फिर भी वो चाहते थे कि ये खुद ही छोड़े। घर वाले तो चांस देते हैं बहुत बार, बट मैंने उसका गलत फ़ायदा ही उठाया, जैसे सभी करते हैं। वो मुझे पैसे कंटिन्यू देते रहे, उनको लगता था कि ये छोड़ेगा, बट मैंने उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा। पहले तो स्टार्टिंग में 1 बिट 2 बिट, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता 1 ग्राम 2 ग्राम पे पहुंच जाता है इंसान। घर वालों ने इस तरह सपोर्ट किया, घर वालों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ तुम्हें ड्रग सेंटर जाना चाहिए, हम तुम्हारा साथ देंगे। उन्होंने मुझे ड्रग सेंटर में एडमिट किया। हर माँ बाप से आप पूछ लीजिए, हर बहन से आप पूछ लीजिए, वो बोलते हैं कि इस बच्चे ने हमारे साथ कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाया कि अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन ये बच्चा शाम होते ही दोबारा करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स। क्यों करता है ये? वो उसकी मजबूरी बन जाती है। मजबूरी ये है कि जिसको हम लोग प्रोफेशनली हम लोग उसको बोलते हैं विड्रावल इफ़ेक्ट्स। इसको जिसम में दर्द हो जाता है, उसको आंखों से आंसू बहने शुरू होते हैं, नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, पूरे जिस्म में दर्द हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, डायरिया हो जाता है, हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस उसको आ जाते हैं। और ये चीज़ उसको इतना मजबूर कर देती है कि उसको वो माँ बाप का कसम, माँ बाप का कमिटमेंट, माँ बाप की वो नसीहत सब भूल जाता है। The drug addicts had been showing resistance of getting rid of the menace, as many of them can't get through without using drugs. Most of the patients who said they could get through a week without using any drug were cannabis users. The study has also revealed that in order to get rid of the problem, 83% of respondents had gone to someone for their drug problem. 17% did not approach anyone. अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक बहुत सारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि एडिक्शन इसके अपने कंट्रोल में है। एडिक्शन एक डिजीज़ है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। एडिक्शन एक जैसे कोई और डिजीज़, जैसे आपका कुछ फीवर वाली डिजीज़ या इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है या हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़, घर जा बैठ के आप तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना, उसके लिए आपको हेल्प सीख करनी है। वैसे ही एडिक्शन भी एक, इट्स इनफैक्ट अ ब्रेन डिजीज़ कहते हैं हम इसको। एक ही चीज़ इसमें अच्छी है, वो ये है कि इट इज़ वन ऑफ द प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर्स एंड ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स। 2 चीज़ें इसमें अहम हैं। इससे हम बच सकते हैं, इसका हम इलाज पूरी तरह से कर सकते हैं। जो लोगों में नॉर्मली जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि लोगों को बताना कि ये एक ऐसी तकलीफ़ है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे हम बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात, There are many signs of drug addiction which, if caught on early by the family or friends, can save many lives. Parents need to take keen interest in the lives of their children and observe them at all times. एग्रेशन का होना, गुस्से का होना इनएप्रोप्रिएट टू हिज एज, एकेडमिक डिक्लाइन का होना, बच्चों का स्कूल से एब्सेंट रहना, बच्चों की फ्रेंड्स की तरफ ध्यान देना, वैसे फ्रेंड्स होना जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है और किसी हिसाब से मेल मिलाप नहीं है, वैसे फ्रेंड्स का होना, नींद के पैटर्न का चेंज होना, जनरली इल हेल्थ में रहना, ठीक, ये सारी वो अर्ली साइंस है जो हमको सब्सटेंस यूज़ की तरफ पॉइंट करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि जिन सब में ये चीज़ें होंगी वो सब्सटेंस यूज़र है, बट हो सकती है। सो हमें अर्ली, फिर लेट साइंस यूजुअली क्या होती है कि लेटली कभी सीजर का होना, कभी अनसली बीमार होना, या बाकी कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ जो उस एज में नहीं होते। मतलब मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि हमारे पास एक कार्डियक एरिथमिया था एडमिट एक बार, तो 2-3 बार एडमिट हुआ, समझ ही नहीं आता था उस एज में एरिथमिया क्यों हो रहा है, तो वी अल्टीमेटली फाउंड आउट कि वो सॉल्वेंट अब्यूज़ कर रहा है। सो क्योंकि इट यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द किस काइंड्स ऑफ साइंस है। रिसेंटली हमारी एक स्टडी में हमने ये देखा कि जो श्रीनगर के जो स्कूल्स हैं उनमें से जो एडोलसेंट्स हैं 10 से 19 साल तक के बच्चे हैं, लगभग 30% बच्चे जो लड़के हैं सिगरेट नोशी में मुलविस हो रहे हैं। और ये शुरुआत होती है जब इंसान ड्रग एडिक्शन में फंस जाता है। जो टीचर्स हैं, क्लासरूम के टीचर्स हैं, वो बच्चों पे नज़र रखें कि जो उनका डेली पैटर्न था, क्या कोई इसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। जो अगर वो स्कूल कभी बंक तो नहीं कर रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली एब्सेंट तो नहीं रह रहे हैं, इन सब चीज़ों पे स्कूल टीचर्स का भी काफ़ी रोल है। आम तौर पर नशे वोल करान घर सह बेहान अलग कुछ जमिस
तमिस घरकन मज आज टोटल कहीं सुबह 10 बजे 1 बजे 12 बजे वथान निंद्र चीर चीर वथान मगर फिक्र वन कर पत् 3 वरी गई तम पता यह कर तो डिस्पो पे मे घर वस सह वो तमो कर वन वे बत खान शरारत कर पे वोन मे तमस ये दलील तो अगर तुम मे नीव तो करो मे इलाज मे कोर पन्ने घर यूथ हेल्प क्या बह हेक वन बहुत वनकस इलाज करान बस मंठान वनस पन्नस फादरस मदरस च वस योर क्या वनकस मे एहसास गसान क्या नशस दौरान तूत मैं करान कहीं। हम पूरे ट्रीटमेंट में फैमिली का बहुत यूज़ करते हैं, फ्रॉम मोटिवेशन से लेके, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम टाइम फैमिलीज़ ही इन बच्चों को लाती हैं हमारे पास, तो मोटिवेशन में वो बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी हम एडमिट करते हैं यूजुअली फैमिलीज़ के साथ, और वो हमें हेल्प करती है फैमिलीज़, वो मुश्किल पीरियड में हेल्प करती है हमारा। फिर मेंटेनेंस फेज़ में तो एंटायरली वो फैमिलीज़ के साथ ही होता है। फैमिलीज़ हमको अगर कभी स्लिप हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, फैमिली अगर कभी रिलैप्स हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और जो ट्रीटमेंट होता है उसको फॉलो करवाती है। इसके अलावा हम यूजुअली जो हमारी तरफ से हम फैमिलीज़ को जो डिजीज़ मॉडल का कंसेप्ट देते हैं रादर देन क्रिमिनल मॉडल का कंसेप्ट, उससे ये फ़ायदा हमको मिलता है कि बच्चों उनकी जो बच्चों की तरफ एम्पैथी है वो बढ़ जाती है, और उससे ट्रीटमेंट रिजल्ट्स अच्छे आते हैं रादर देन अगर हम क्रिमिनल मॉडल से देखेंगे। The addict's family should immediately send him or her for treatment as soon as they know. They need to support them rather than falling under the pressure of social stigmas attached to the addiction. There are many treatment centers for drug addicts that can change their lives through proper medication, care and treatment. Patients are counseled towards a better life and made to come out of the darkness. मैं देखा यहाँ पर लेडीज़ वो खुश है, वो कहते हैं हम एक ही दिन की एक ही टाइम की रोटी खाएंगे, लेकिन हमारा हस्बैंड शाम को ठीक रहे। मैं देखता हूँ उस माँ के लिए, जो माँ आके मुझे बोलती है कि ये मेरा बच्चा इंतज़ार कर रहा होता है, माँ को कब नींद पड़ेगी मैं इसके कान से ये झुमके निकाल के ले जाऊँ और जो बेच दूँ। हिस्ट्रीज़ है, डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, डॉक्यूमेंटेड है इस तरह की कहानी। और उस लड़के के लिए, उस बाप के लिए जो नशे की हालत में होती है और जिसकी बेटी तरसती रहती है कि मैं अपने बाप की गोद में बैठूं, लेकिन शी फील्स इनसिक्योर क्योंकि बाप उस हालत में नहीं होता है। उस बहन के लिए, जो बहन अपने भाई के साथ 4 पल शेयर करना चाहती है लेकिन भाई उस हालत में होता है, ये बहन कंफर्ट फील नहीं करती है, इनसिक्योर फील करती है। यम सात बह योर आउस रेहबस मज तम सात मे 15 दोन गई मे जबान ना बह हेकान नड़ित थोद ना जंग वारिया प्रॉब्लम गई मे यीज प्रॉब्लम गई मे घर के सत बह हेकान कत कर कहीं पे क्या टाइम गो तो मे हेच कत कर क्या यूत मे पन टाइम दिते तूत बास मे पन पान सेफ। वनकस मे याद कह यम सात बह तम सात मे कोर्मुत यह मे याद कह मे क्या वोनमुत, यह मे वनकस याद कहीं क्या नशे पत् रोज तूत याद कहीं क्या वनकस मे बासान पन पान फिट क्या अगर मे ब्रो कह कर मे गि कहीं। खुदायस कुन शुक्र बेहज मेहरबानी क्या यमो कोर मे वारिया हेल्प। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए माँ बाप को कि अगर उनके बच्चे में कोई तब्दीली आई उनके बिहेवियर में या उनके रहन सहन में या घर में से कभी कभी कोई चोरियाँ हो रही है, तो इस सूरत हाल पे माँ बाप को भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ बच्चा खुदा न खास्ता इस ड्रग एडिक्शन की मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं हुआ है। और साथ में वालिदैन से ये भी अपील है कि अपने बच्चों को थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए, सिर्फ एग्ज़ाम्स या पढ़ाई का प्रेशर न डाल के उनके साथ रिक्रिएशन के भी जो भी तौर तरीके हैं उनको उनमें इन्वॉल्व करिए, उनके साथ बात कीजिए, उनके अगर कोई मसाइल हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दिन ब दिन ये मर्ज़ जो हमारा है इस वक्त ड्रग एडिक्शन का ये काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और ऐसी सूरत हाल बन रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें फंस चुके हैं और माँ बाप और बाकी जो हैं रिश्तेदार उनको इस बात की भनक भी नहीं लगती है कि हमारा बच्चा इसमें फंस गया होता है। और सूरत हाल ये होती है कि उनको इसमें से निकालने की बहुत कोशिश करनी पड़ती है। सो
हमारी पेरेंट्स से मुद्दबाना अपील है कि अपने बच्चों के रहन सहन पे नज़र रखिए, और अगर इस सूरत हाल में उनको लगे कि हाँ हमारे बच्चे में कोई बिहेवियरल चेंज आ रही है, वो किसी नशे में मुब्तला हो रहा है, तो इमीडिएटली जो भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं या जो हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे रब्ता करके उनको इस लत से छूट दिलवाइए। The fact is that substance abuse has become an epidemic without us realizing, and it's high time that it's brought under control. The Kashmiri society, with its own definitions of values and morals, isn't looking at the fact that the drug monster is hitting hard at home, and the worst part is that it's hitting them young.